all well. So today I am going to teach you your third chapter of science, that is food and health. It's very easy and common topic which we are reading from our previous classes. But here you will learn something different, like components of food. Okay. So what is the name of the chapter is food and health. So how we can maintain our health with food. So here is one activity given to you that you have to find out names of components of food from this box given below. One has been done for you, that is fat. Clear? Now you are confused that ma'am what are other names. So for that we have to continue with the chapter reading. And here I am going to start it with chapter reading, where first topic is components of food. Okay. Before that, let me tell you that why we are eating food. We need food to get energy, to study, to play and work, grow and stay healthy. See beta, when have you seen your mother on fasting? जब वो fast करते हैं, that particular day वो थोड़ा सा अपना काम slow कर देते हैं, that वो ज़्यादा रेस्ट लेना पसंद करते हैं rather than keep on working. Regular days में जो वो work करते हैं, that is only because she is eating on regular intervals, breakfast, lunch and dinner. And meanwhile उनके during जो वो brunch और evening में snacks लेते हैं, तो वो क्या होता है कि time to time उनको energy मिलती रहती है. But see in the case of fasting में क्या होता है कि वो नहीं खाते, तो that means उनका थोड़ा सा work का जो process है वो slow हो जाता है. तो इसीलिए रेगुलर एक्टिविटीज के लिए यू ऑल्सो नीड टू ईट प्रॉपर फूड. वाई? बिकॉज वी नीड एनर्जी फॉर स्टडी, फॉर अदर एक्टिविटीज, टू ग्रो एंड स्टे हेल्थी. Previous classes we have learned about various components of food. In this we'll revise the components of food, discuss the importance of healthy food, harmful effects of junk food on your health. Okay, let's start with the first topic, that is components of food. Food contains some essential substance called nutrient. There are 5 main nutrients present in our food. 5 main. There are 2 other nutrients which we'll talk later. Firstly, 5 main. They are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Let's repeat. They are carbohydrates, then fats, proteins, vitamins, minerals. Roughage and water. I told you there were 2 another, that were roughage and water are 2 other components of food. Okay. Now comes to the next page quickly. Here in this page we will talk about components of food in detail. We will talk about components of food in detail. Okay. First let me erase this. Alright. So let's talk about first component of food, that is carbohydrates. Sources and function. In this table you know about हमें कहाँ से मिलता है carbohydrate and what are the functions. So sources, cereals जो होते हैं, cereals हम कहते हैं like rice, wheat, fruits, potatoes and honey. इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. और क्या फंक्शंस है इसके? They give us energy. कार्बोहाइड्रेट खाने से एनर्जी मिलती है. तभी बच्चों को कहा जाता है कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स वो ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों को एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है. ऑल द टाइम दे आर प्लेइंग, दे आर स्टडिंग, दे आर रनिंग. सो these kind of activities require lots of carbs. Clear? Next is fats. Oil, butter, ghee, cream, milk, dry fruits. इन सब में fats होता है, which is also very essential for a growing age child like you. आपके लिए भी ये चीजें required है. They gives us energy. Natural है कि जब हमें sometime morning हम स्कूल के लिए भागते हैं, we are rushing towards the van, तो मम्मा हमारे पॉकेट में कुछ almonds और cashews रख देते हैं. That is only कि अगर आपको low feel हो रहा तो you can take energy back from those nuts. Okay. Comes to protein. Milk, cheese, eggs, meat, fish, soya beans and pulses. ये sources हैं protein के. They build muscles, repair the body and help us to grow. जो बच्चे होते हैं like your age growing children, they require lots of protein. तो
प्रोटीन कहाँ से आता है? 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन बेसिकली, वेज और नॉन वेज दोनों तरीके से हम ले सकते हैं. बेसिकली जो नॉन वेजिटेरियन है दे कैन टेक फिश ले सकते हैं, वो मीट. अदरवाइज मिल्क, चीज, सोयाबीन स्पेशली एंड देन पल्सेस, इनसे उनको प्रोटीन मिलता है. क्लियर? और क्या काम करता है बॉडी में? ये मसल्स को रिपेयर करता है. जो प्रोटीन है इट रिपेयर्स आवर मसल्स. लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज विटामिन्स. दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट. हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं. तो हमें किससे मिलते हैं ये कंपोनेंट्स? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स, फिश एंड मिल्क. दैट्स व्हाट हम आपको कहते हैं कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. अगर कोई बच्चा ऑल द टाइम कार्ब्स ले रहा है तो भी उसकी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उसको विटामिन्स नहीं मिल रहे. क्योंकि हमें विटामिन्स किस में हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड फाइट अगेंस्ट द डिजीज. जो भी डिजीज हमारी बॉडी में लगता है, बीमारी लगती है, वो हमें विटामिन्स ही हेल्प करता है रिकवर करने में. तो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स, fish and milk is required. Next component is minerals. They are also required in small amount. So they are specially available again in green leafy vegetables, fruits, milks, egg and salt. तो ये कैसे help करते हैं हमारे? They help in functioning of body and keep body healthy. तो हमें minerals भी इन चीजों से मिलते हैं और हमारी body के लिए ये भी उतने ही equally important है. Getting my point? Now next is roughage, which is quite main thing which I can told you. roughage आपको सबको पता है कि कहाँ से मिलता है? सैलेड से. roughage is required for digestion. हम सब खा लेते हैं but for digestion we need roughage. जो हम चपाती खाते हैं, चपाती के अंदर भी जो हमारा व्हीट का फ्लोर होता है उसके अंदर भी अगर हम उसको प्रॉपरली यूज करते हैं एज इट इज, सीड के साथ उसको नहीं हम करते तो उसके अंदर ऑलरेडी रफेज होता है. क्लियर? तभी हम आपको मना करते हैं रिफाइंड फ्लावर नहीं खाना. रिफाइंड फ्लावर इज मैदा विच इज रियली हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. क्लियर? सो हियर रफेज फाइबर्स प्रेजेंट इन आवर फूड आर कॉल्ड रफेज. होल ग्रेन, एज आई टोल्ड यू, रिफाइंड फ्लावर के अंदर होल ग्रेन नहीं होता. हमें प्रॉपर व्हीट को एज इट इज कंज्यूम करना चाहिए. जब वो व्हीट आती है उसको ऐसे ही हम घर पे जब लेकर आते हैं तो कभी भी उसको सीड के साथ हमें छनना नहीं चाहिए, एज इट इज देना चाहिए. वो होल ग्रेन है. फ्रूट्स, हम क्यूकम्बर खाते हैं, यूजुअली क्यूकम्बर का हम जो पील है उसका जो छिलका है रिमूव करके फेंक देते हैं बट उसमें ज्यादा रफेज है. क्लियर? तो हमें उसको ऐसे ही कट करके खाना चाहिए. एंड देन वेजिटेबल्स, हमें रॉ वेजिटेबल्स खानी चाहिए लाइक कैरेट, radish, we can have turnip in winters. In summer we can there are less options. Yes, we can take it in as a cucumber. Okay, many other options are present also. So they help us undigested food को body से बाहर निकालने में help करता है. That is roughage. So we were talking about water. That water help in removing waste from our body. As other things are important for our body like carbs, proteins, roughage, same way water is also very important. We should drink 6 to 8 glass of water every day. Okay, it helps to maintain the normal body temperature of our body. Okay, and जो water है ये क्या करता है? waste को remove करता है through sweat और urine. urine के through और sweat के through जो वेस्टेज ऑफ बॉडी है वो आउट होती है. नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट. व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? इट्स विच कंटेन्स एवरीथिंग, यू नो. यस, नाउ अ डाइट दैट कंटेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. सी हियर वर्ड इज यूज्ड राइट अमाउंट. मीन्स अगर हम बैलेंस डाइट में हम खाना ले रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि हम एक चीज की क्वांटिटी को ज्यादा कर दें. जैसे सपोज हम वेजिटेबल तो सिर्फ, आई हैव सीन बच्चे क्या करते हैं, उनको सिर्फ 1 स्पून और 2 स्पून ही चाहिए और चपाती वो समटाइम 2 और 3 इनटेक कर लेते हैं, विच इज नॉट राइट. ओके, सो आपको प्रॉपर 1 फुल bowl ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल अलॉन्ग विथ चपातीज. गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज कॉल्ड राइट अमाउंट, कॉल्ड बैलेंस डाइट. द अमाउंट ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ फूड इन बैलेंस डाइट डिपेंड्स जेंडर, मेल, फीमेल एंड अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क डन बाय पर्सन. सी बेटा, हियर हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है मेल फीमेल, तो
इसमें खाने की हैबिट्स भी थोड़ी डिफरेंट होती है. समटाइम मेल्स का क्या होता है, बॉयज थोड़ा ज्यादा फूडी होते हैं, वो ज्यादा खाना खाते हैं, एज कम्पेयर्ड गर्ल्स होती हैं, उनको थोड़ा कम खाना पसंद होता है. और कुछ अगर हम बात करें वर्कर्स की, सी जो लेबर क्लास है, दे आर वर्किंग 8 आवर्स रेगुलरली विद हैवी वेट, तो उनके लिए जो डाइट है दैट इज डिफरेंट. और जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हम घर से स्कूल आते हैं, स्कूल में आकर बैठ लिया, उसके बाद हम घर गए, फिर ट्यूशन चले जाते हैं, आफ्टरवर्ड्स खेलने का टाइम हमें सिर्फ 1 आवर हार्डली मैक्सिमम मिलता है. तो हमें उस टाइप पे फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही अपने डाइट को लेना चाहिए. अगर हम कहें कि हमें ज्यादा कार्ब्स लेनी चाहिए, ज्यादा प्रोटीन, ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, तो ओवर ईटिंग इज ऑल्सो नॉट गुड बेटा. राइट अमाउंट मीन्स प्रॉपर अमाउंट. ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पेज. Here we will talk about balanced diet. We were talking about. So balanced diet पे here is next point given to you. Growing children like you need more proteins in their diet. It help in building muscles and growth. तो आपकी इससे muscles build होते हैं और growth होती है. An athlete or laborer, as I told you, labor class or same way athlete or any other person who does more physical work requires more hard carbohydrates in his or her diet. Then people who work in offices need less carbohydrates and fats in their diet. As I told you, offices में जो work करते हैं, the same with children, जब हम घर से स्कूल आते हैं, किसी दिन आप ज्यादा ऑयली फूड खाओगे, स्कूल में बैठे रहते हो, उसके बाद कोई एक आध पीरियड आपको मिलता है बाहर जाने के लिए, तो समटाइम हमें काइंड ऑफ एसिडिटी होती है बिकॉज हम सारा दिन बैठे रहते हैं. Yes, so this was all about your balanced diet. So children, now we will talk about importance of balanced diet. The first one is it helps in proper growth and development of the body. जो बैलेंस डाइट है वो हमारी पूरी बॉडी की डेवलपमेंट करने में हमारी हेल्प करती है. नेक्स्ट इज इट इज नीडेड फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. whatever the function body is doing, it is only with the help of balanced diet. समटाइम हम डाइट प्रॉपर नहीं लेते तो कोई ना कोई बीमारी, हमें कोई ना कोई डिजीज बहुत जल्दी से लगने लग जाता है. काइंड ऑफ कॉमन कोल्ड भी हम कह सकते हैं, कफ, कॉमन कोल्ड, फ्लू बहुत जल्दी से हमें पकड़ता है बिकॉज हम अंदर से सॉलिड नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं आ रही बॉडी में. दैट इज ओनली बिकॉज दैट यू पीपल आर नॉट कंज्यूमिंग बैलेंस डाइट. करेक्ट. Next, it helps to maintain an ideal body weight and keeps us fit. अगर हम proper balanced diet लेंगे तो कभी भी हमारा weight increase नहीं होता, plus हमें fit रखने में help करता है. Next, it protect us from disease. हमें कोई भी disease होता है वो भी balanced diet के through help होता है कि वो खत्म हो जाए. Here, next comes to junk food. So here, this is very interesting topic. I can understand. Topic may be interesting नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर मना किया जाएगा जंक फूड खाने से. Okay, but word junk food is very much interesting for all of you. Am I right? But after reading this, I'm sure आप अपना कुछ interest उसमें से cut कर दो. Okay, so let's read. A food item that contains high amount of sugar and fat with no or very less amount of fiber is called junk food. You know what? जो भी disease आता है, that is किसी diabetic जो patients हैं, we can say high blood pressure, cholesterol body का increase होता है, ये सारी चीजें it is only due to this junk food. Junk food में क्या problem है? इसमें जो present प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, शुगर और सॉल्ट इसमें जो यूज होता है दैट इज इन हाई अमाउंट. तो वो हाई अमाउंट का सॉल्ट और शुगर बॉडी में जब जाता है तो लॉट्स ऑफ डिजीजेस को वो अपनी तरफ खींचता है. ओके, सो जंक फूड डज नॉट गिव प्रॉपर न्यूट्रिशन टू द बॉडी. बर्गर्स, पिज्जाज, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ जंक फूड. अब इसी प्रैक्टिकल बात करते हैं. अगर मैं आपको बोलूं कि आपको बिल्कुल भी नहीं खाना, आई नो कि आप लोग एक बार बोलोगे ओके मैम, बट फिर से आप उसको कंज्यूम करोगे. बट देयर इज अदर वे. हमें हमेशा अदर वे लेकर चलना चाहिए. अदर वे क्या है? आपका मन हो रहा है खाने का, सबसे पहले तो आस्क योर मदर. होममेड जंक फूड हम रेडी कर सकते हैं
जिसके अंदर हम वो सॉसेस ऐड कर वेजिटेबल्स की क्वांटिटी को ज़्यादा रखकर हम मैगी या नूडल घर पे कुक कर सकते हैं। जो मैगी और नूडल्स हैं वो भी हम होममेड ले सकते हैं। पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है, then we can have that base of pizza is also homemade. Rather than consuming that refined flour base, we should try to eat homemade base. You can check many recipes are there which are nowadays available on YouTube very easily. So we must try to eat homemade things. This is the first option. और अगर homemade में कोई problem आ रहा है, the second option, you can consume it on weekends only, not on regular basis. But make sure जब भी आप उसको कंज्यूम करते हो, drink lots of water along with that. तो water से क्या होगा कि वो बॉडी से रिमूव इजीली हो जाएगा. And secondly, what we have to do, we need to do exercise. When we will do exercise, through sweat जो wastage है बॉडी के अंदर से, जो डिटॉक्स हो गई है बॉडी, वो थ्रू स्वेट निकलेगा, और वाटर लेंगे तो यूरिन के थ्रू पास आउट होगा. Getting my point? So there are two other way I told you which you have to follow. Now comes to the that we should avoid drinking that cold drinks which are very very harmful. Lots of sugar it contains. Okay. Now say no to junk food. See, देखने को सबको अच्छे लगते हैं, but I told you we can also have this at home. Once हम ले सकते हैं, चलो मार्केट से once in a week हम खाना चाहते हैं, तो what we need for that once what we do, पैटी इनसाइड हम उसको होममेड कर सकते हैं. उसके अंदर अच्छा सा चीज और सैलेड घर से फिल कर सकते हैं. एज आई टोल्ड यू, पिज्जा द सेम वे. चिप्स भी आप घर पे ट्राई कर सकते हो. प्लस चॉकलेट्स अगर मन हो रहा है, सम चॉकलेट्स आर वेरी गुड फॉर द हेल्थ. डार्क चॉकलेट अगर आप लेते हो ग्रोइंग एज में तो इट्स गुड, बट वो भी वंस इन अ वीक, नॉट ऑन डेली बेसिस. ओके. अगर हम कहें कि कुछ बच्चे स्लिम होते हैं, उनको जंक फूड खाने से फैट नहीं आती, बट उनको जो प्रॉब्लम है वो अदर वेज में स्टार्ट हो जाती है. वो काफ़ी स्किनी होने लग जाते हैं, प्लस उनकी हाइट नहीं ग्रो करती, उनको वेरी यंग एज में स्पेक्टेकल्स लग जाती हैं, एंड कुछ हेयर फॉल का इश्यूज होने लग जाता है बच्चों का, स्किन पैची सी हो जाती है. दिस इज ओनली बिकॉज दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड. ओके. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ junk food. Eating junk food on a regular basis and making it part of daily diet is not good for health. Some harmful effects of eating junk foods are as follows. Lack of energy in the body. आप लोग फील करते होगे समटाइम कि खा लिया और फिर बैठे रहे, कि मन नहीं करता, एकदम से एक्टिवनेस नहीं आती बच्चों में. That is only because that you people are consuming junk food on regular basis. Comes to the next point, lack of nutrients in the body. It may cause deficiency disease. Deficiency disease, we will study about deficiency disease later in this chapter. Sometime मैंने आपको बताया कि जो बच्चे खाना जंक फूड लेते हैं और उनको वो खुश है कि हमें फैट नहीं आती, that doesn't mean कि उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको भी प्रॉब्लम होगी, which we will read later in this chapter. Comes to third point, it increase body weight, that is called obesity. Then obesity cause many disease. Body weight, आजकल it's very very common issue among the young children that they people are eating and becoming fat day by day. तो वो फैटी जो बच्चे होते हैं, सी उनका लुक खराब होता है. आपको पर्सनैलिटी वाइज अगर आपको ग्रूम करना है तो वी शुड स्टॉप ईटिंग दीज जंक फूड्स. ओके. देन नेक्स्ट विल टॉक अबाउट लैक ऑफ फाइबर इन द डाइट कॉज कॉन्स्टिपेशन, डिफिकल्ट बॉल मूवमेंट. तो बेटा लैक ऑफ, अगर हम फाइबर नहीं खाएंगे, रफेज नहीं खाएंगे, तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, विच इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर चिल्ड्रन. ओके. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज, बेटा when I am giving you reading of this chapter, so I hope you are able to solve this exercise by yourself. So solve this exercise by yourself afterwards and I will send you the answer key. Now comes to the नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू मेक आवर डाइट हेल्दियर. अभी हम बात कर रहे थे हमें ये नहीं खाना चाहिए, हमें ये नहीं लेना चाहिए, तो फिर क्या खाना चाहिए? सी, द वेरी फर्स्ट इज यूज लेस ऑयल व्हाइल कुकिंग फूड. हमें फूड में जो ऑयल है उसको कम कर देना चाहिए. खाना जो हम खा रहे हैं दैट इज ओके, बट अगर हम उसको ज़्यादा फ्राइड खा रहे हैं तो हमें वो हार्मफुल है. डू नॉट ईट डीप फ्राइड फूड्स ऑन रेगुलर बेसिस. Use less salt and sugar in your food. Use brown sugar instead of white sugar.
हम ब्राउन शुगर का यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दैट वाइट शुगर. ईट होल ग्रेन सीरियल्स इंस्टेड ऑफ पॉलिश्ड वंस. हमें होल ग्रेन सीरियल्स पे ही फोकस करना चाहिए रादर देन पॉलिश्ड वन. ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स. डेली they are rich in vitamins. Okay children, so here we will talk about our second part of this chapter, that is disease caused due to unhealthy food habit and lifestyle. As I told you in previous topic that there are certain diseases, there are few diseases which are only because wrong habits of food. What were those wrong habits? Let's recall that what we should quit as soon as possible. That is, the very first one is junk food, then frying food. Yes, so these kind of food we should stop eating because due to these there are lots of diseases. Let's talk in detail. Okay, so here eating a lot of junk food, not having balanced diet and no physical activity like outdoor games or exercise. अगर हम junk food खाते हैं और एक्सरसाइजेस नहीं करते, ओके, तो उससे क्या होता है? कॉज डिजीज. देयर आर कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीज. दीज आर कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीज. इनको हम क्या कहते हैं? लाइफस्टाइल डिजीज. ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अनीमिया एंड हार्ट डिजीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज. यू नो व्हाट बेटा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हैव यू सीन अपने, अगर हम ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, दादा दादी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको ये डिजीजेस बहुत कम होते हैं. व्हाट इज द रीजन? वो हमारी तरह जंक फूड नहीं खाते, उनका लाइफस्टाइल कुछ डिफरेंट था. जब वो यंग थे, जब वो एडल्ट एज में थे, देन देयर वर्क वाज विद लॉट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज. उनको फिजिकल वर्क करना खुद पसंद था, वो अपना सारा काम खुद हाथ से करते थे. नाउअडेज हम क्या करते हैं कि हमने घर के लिए मेड्स रखी हुई हैं, वो काम करते हैं, और बच्चे भी यूजुअली बाहर खेलना नहीं पसंद करते, रादर दे लाइक टू प्ले गेम्स ऑन मोबाइल और वीडियो गेम्स. सो उसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही उनकी. बट एट द टाइम ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स वो क्या करते थे? दे लाइक टू प्ले आउटसाइड. उनकी आउटसाइड एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती थी. तो दैट्स व्हाट दे आर हेल्दी राइट नाउ ऑल्सो. तो अब भी उनको कोई किसी टाइप का डिजीज नहीं है. ओके, सो ये जो डायबिटीज, अनीमिया क्या होता है बेटा? जिसमें ब्लड जो होता है अपनी बॉडी में, नॉर्मल बॉडी में ब्लड जो होता है वेरी करता है गर्ल्स और बॉयज का, एज वाइज वेरी करता है. अगर बॉयज की अंदर 13 होना चाहिए और देयर इज रेंज बिटवीन 12 के गर्ल्स के अंदर इतना ब्लड होना चाहिए. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट हार्ट डिजीजेज. ये भी डिजीज है जो गलत खाने से ही आते हैं, और ब्लड प्रेशर, देन ओबेसिटी, ये सारे लाइफस्टाइल डिजीजेज है. So here is the first disease, that is obesity. This is caused eating junk food and no exercise. Obesity क्यों होती है? जब हम सारा दिन जंक फूड्स खाते हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते. तो what are the symptoms of obesity? Increase in weight, tiredness and lack of energy. तो इससे क्या होता है? वेट इंक्रीज होता है, बॉडी हमेशा थकी थकी महसूस करती है, और लैक ऑफ एनर्जी हम फील करते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत कम है. ओके, कम्स टू द सेकेंड पॉइंट, हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज हाइपरटेंशन. हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? बॉडी का जो ब्लड का प्रेशर है वो हाई होता है. दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ नो एक्सरसाइज. एंग्जाइटी, एंग्जाइटी होता है बेटा जब हम क्या करते हैं कि लैक ऑफ एनर्जी, हम बैठे रहते हैं, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो अपने अंदर बैड नेगेटिव थॉट्स आती हैं, तो वो उसकी वजह से हम सोचते बहुत ज्यादा है. अगर हम वही अपनी एनर्जी को पॉजिटिव थिंग्स में कन्वर्ट करके उसको निकालेंगे तो हमारी वो एंग्जाइटी भी खत्म होती है. ओके, सो हियर इज एंग्जाइटी. देन ईटिंग फूड्स हैविंग टू मच सॉल्ट एंड फैट्स, ऐसा खाना खाने से भी फैट होती है. देन सिम्टम्स क्या है? हैवीनेस इन हेड एंड डिजीनेस, सिर हमेशा भारी भारी रहना, और डिजीनेस मतलब थोड़ा सुस्ती में रहना. ब्रीथलेसनेस और एक्सेसिव स्वेटिंग, जब वो स्टेयर्स चढ़ते हैं, ऐसे लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है वो थोड़े फैटी हो जाते हैं, तो उनको स्टेयर्स चढ़ते टाइम भी सांस रुकना और उसके बाद उनको ज्यादा स्वेट होना. दीज आर ऑल ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाइपरटेंशन भी
बोलते हैं. ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट डिजीज, दैट इज डायबिटीज. एक और डिजीज है डायबिटीज. डायबिटीज इज ड्यू टू ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस इन एडल्ट्स. बेटा आपने हर जगह में देखा होगा कि ओबेसिटी और लैक ऑफ एक्सरसाइज कॉमन है. जब ही बॉडी में फैट आना स्टार्ट हो जाता है तब डिजीजेस भी उसको अट्रैक्ट करने लग जाते हैं. उस बॉडी में बहुत सारे डिजीजेस आते हैं. और लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम अगर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, इन योर एज व्हाट आर द इजी एक्सरसाइज यू कैन डू एट होम? साइकिलिंग. बच्चों को साइकिलिंग करना बहुत पसंद है, तो हाफ एन आवर आपको साइकिलिंग करना चाहिए अपनी ही स्ट्रीट में. अगर आप कहीं बाहर नहीं जाते तो इन योर स्ट्रीट. और सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन डू सिंपल स्टेप्स ऑफ योगा एट होम इन द मॉर्निंग. योगा करने के बाद आप रनिंग कर सकते हो. गर्ल्स के लिए स्किपिंग बहुत अच्छी होती है, वो स्किपिंग कर सकती है. बॉयज कैन ऑल्सो डू स्किपिंग. बच्चे स्टेपो खेल सकते हैं ऑन देयर टेरिस ओनली. अगर उनको बाहर जाना नहीं पसंद तो वो टेरिस में स्टेपो खेल सकते हैं. और जंपिंग कर सकते हैं, देन रनिंग कर सकते हैं, खड़े खड़े जो हम जॉगिंग करते हैं. तो ये सारी एक्सरसाइजेस बच्चे कर सकते हैं. देन लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस इन एडल्ट. एडल्ट एज में आकर देयर आर, बेटा लाइफस्टाइल चेंज होता है तो लॉट्स ऑफ चीजों का स्ट्रेस भी माइंड पे रहता है. अभी आप बच्चे हो, हमेशा दूर रहो स्ट्रेस से. स्ट्रेस कभी आपके पास ना आए. और अगर आपको लग रहा है कि आपको स्टडीज का स्ट्रेस हो रहा है तो योर टीचर्स आर ऑलवेज देयर, यू कैन कॉन्टैक्ट देम. आपको वो स्ट्रेस भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगा. ओके, देन इनके सिम्टम्स क्या है? अगर किसी को डायबिटीज होता है तो कैसे पता चलता है कि उसको डायबिटीज है? एक्सेसिव थर्स्ट एंड हंगर. ज्यादा प्यास लगना और भूख लगना इज द सिम्टम. देन नेक्स्ट इज एक्सेस पासिंग ऑफ यूरिन. वो बच्चे बार बार, या बड़े जो भी है जिनको भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनको यूरिन की प्रॉब्लम होती है, वो बार बार यूरिन पास आउट करते हैं. देन इंक्रीज अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड. ब्लड के अंदर अमाउंट ऑफ शुगर इंक्रीज हो जाता है. ये तो जब लैब में ब्लड चेक होता है देन वही डायग्नोज करके हमें बता सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है. कभी भी किसी को ऐसी प्रॉब्लम ना हो, उसका एक ही एक सोल्यूशन है, लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज एट होम. आप घर पे रहकर बहुत अच्छी फिजिकल वर्कआउट कर सकते हो और उससे हम बहुत सारे डिजीजेस को दूर रख सकते हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज अनीमिया. अनीमिया का जो कैसे होता है? दैट नॉट ईटिंग फूड रिच इन आयरन लाइक स्पिनच एंड डेट्स. बच्चे जो होते हैं वो ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते. ग्रीन वेजिटेबल खाने से जो बच्चे खाते हैं उनको कभी भी अनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होती. गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को अगर आपने फुल ऑफ हेल्दी रखना है तो ईट. आप पोमेग्रेनेट भी ले सकते हो, डेट्स खा सकते हो आप. देन यू कैन हैव स्पिनच. जो भी ग्रीन वेजिटेबल होती है आप वो भी खाएंगे तो आपको अनीमिया की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. इसके सिम्टम्स क्या है? टायर्डनेस. जब भी ब्लड की कमी होती है बॉडी में तो हम थका थका फील करते हैं. लैक ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी में से एनर्जी निकल जाती है. लॉस ऑफ एपेटाइट. एपेटाइट लॉस का मतलब क्या होता है कि हमें जब हम खाना खाते हैं डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है और हमें भूख भी टाइम पे नहीं लगती. ओके, देन पेल स्किन. जो आपकी बॉडी की स्किन है, जो कलर है अपनी बॉडी का, एक स्किन कलर होता है, वो निकलकर पेल हो जाता है, मतलब थोड़ा येलोइश कलर में आ जाता है. तो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीजेस. लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिजीज. हम इन डिजीजेस से कैसे बच सकते हैं? Very common, again I told you many times in the classroom also, every time your parents also giving you these kind of suggestions. Again I am going to repeat it for you people, that is eat a healthy and balanced diet. हमें रोज अपनी डाइट को बैलेंस्ड बनाना होगा. ये नहीं है कि आज आपको भूख नहीं लग रही और आप फिर उसके बाद क्या कर रहे हो, इवनिंग आवर्स में आकर आपको जो भी मिल रहा है आप खा रहे हो. जब हम भूखे रहते हैं, खेलते हैं या मूवी में आप टीवी देख रहे हो, भूल जाते हो कि आपको प्रॉपर टाइम पे खाना खाना है, तो इवनिंग में जो भी आपके पास होता है आप एकदम से उसको खाना स्टार्ट कर देते हो. मीन्स वो लेज भी हो सकते हैं, कुरकुरे और व्हाटएवर जो भी ये पैकेट्स में आपको अवेलेबल होता है, तो वो चीज ही हमें सबसे ज्यादा, एक तो पेट पहले खाली था उसके बाद हमने उसमें गलत खाना खा लिया. तो हमेशा आप क्या करो कि जब आप लंच के पहले और इवनिंग आवर्स में आप अच्छे वाले स्नैक्स ले सकते हो जो घर पे होममेड होते हैं, लाइक स्प्राउट्स आई टोल्ड यू. एंड इन और 11 to 12 आवर्स के बीच में जो टाइम होता है, यू कैन हैव फ्रूट्स एंड सैलेड्स एज वेल. ओके,
Then drink 6 to 8 glasses of water daily. आपको मेजर कर कर पीना है. समटाइम आप क्या करते हो, खेलते हो, अंदर आते हो, आपको प्यास लगती है, आप फटाफट पानी ले लिया, एक दो सिप ले लिया, फिर गए फिर आए, और बार बार आप इनटेक कर रहे हो पानी का, बट आपने मेजर नहीं किया. आपको लग रहा है आप खूब पानी पी रहे हो, बट आप जो सिप्स में पानी ले रहे हो वो 6 to 8 ग्लासेस हो रहे हैं या नहीं, ये कैसे चेकआउट होगा, आपको मेजर करना होगा. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपनी बॉटल फिल करके, एक बड़ी वाली बॉटल आपके पास रखनी होगी, कहीं भी रूम में, किचन में, आपकी लॉबी एरिया में, जब भी आप पास आउट हो रहे हो 1 ग्लास पानी इनटेक करो, और आपको क्लियर भी हो जाएगा कि उस बॉटल के अंदर 4 ग्लासेस थे, तो मैंने 4 ग्लासेस ले लिए हैं, तो उसको रिफिल करके आप इवनिंग तक फिर से आप उसको खत्म कर सकते हो. एक्सरसाइज रेगुलरली, प्रैक्टिस योगा एंड प्ले आउटडोर गेम्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट एंड लॉन टेनिस. तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है. बच्चा ये नहीं सोचना दैट यू आर हेल्दी, आप स्लिम फिट हो, आपको कोई डिजीज नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता. समटाइम आई टोल्ड यू इन पार्ट 1 ऑल्सो, अगर हमारी बॉडी दिखने में हम पतले हैं तो फिर भी डिजीजेस आ सकते हैं, क्योंकि हम अपनी बॉडी में से जो स्वेट है उसको बाहर नहीं निकाल रहे, हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर रहे. तो इसीलिए हमें क्या करना है, चाहे हम पतले दिखते हैं, चाहे हम फैटी दिखते हैं, चाहे हम नॉर्मल है, जैसे भी हैं, हमें एक्सरसाइज करनी है. ऑलराइट, तो आपको एक रूटीन फिक्स करना होगा. हाँ, अगर आपको लग रहा है कि अभी वेरी सून स्कूल्स विल ओपन, तो आपको लगेगा कि हाँ अब हम कर नहीं सकते, बिकॉज स्कूल ओपन हो जाते हैं, मॉर्निंग में भी हम बहुत जल्दी जल्दी रेडी होकर आते हैं, और इवनिंग में हमें होमवर्क करना होता है. तो डोंट वरी. तो आपको क्या करना है, यू कैन फिक्स सैटरडे और संडे फॉर योर वर्कआउट. सैटरडे इवनिंग और संडे मॉर्निंग आप वर्कआउट कर सकते हो, और रेस्ट अदर डेज में आपको स्कूल में भी फिजिकल एक्टिविटी का टाइम मिलता है, और इवनिंग आवर्स में आप 1 आवर स्पेयर करके अपने ऊपर स्पेंड कर सकते हो. इंक्लूड वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग इन योर डेली रूटीन. डेली रूटीन में आपको साइकिलिंग करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए. आपके घर में, अगर सबके घर में स्टेयर्स होती हैं, अगर आपको ऊपर नहीं भी जाना, कोई नहीं भी काम है, बट स्टिल आप 2 राउंड लगाइए, 3 राउंड लगाइए, तो उसमें आपका फिजिकल मूवमेंट्स भी होती हैं. देन यूज स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ एलिवेटर्स. मॉल पे हम जाते हैं, लिफ्ट्स होती हैं और एलिवेटर्स होते हैं, तो हमें उनको अवॉइड करके स्टेयर्स को यूज करना चाहिए. उससे भी हम हेल्दी रहते हैं. मॉल में जाकर नेचुरल है, बच्चे क्या करते हैं, जंक फूड तो खाते हैं, तो चलो खा लिया अब आपने जंक फूड, तो उसको हमने निकालना भी है. तो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज स्टेयर्स in the place of elevator. Next, do not sit for long period of time at one place. Take regular, हमें एक ही जगह पर रेगुलर नहीं बैठना चाहिए, हमें ब्रेक्स लेने चाहिए बीच में. अगर हम पढ़ भी रहे हैं, अगर आपकी सिटिंग है 3 to 4 आवर्स की, आप सिटिंग में बैठकर पढ़ते हो, स्टिल आपको उसके बीच में अपने बॉडी के ब्लड को रेगुलेट करने के लिए आपको 1-2 राउंड लगाने चाहिए. आप उठिए, पानी पीने जा सकते हैं, आप बुक को लेकर चलते चलते पढ़ सकते हैं. यू कैन मूव फ्रॉम हेयर टू देयर, ताकि बॉडी में जो ब्लड है वो रेगुलेट होता रहे. Afterwards, do not spend too much time in sitting and watching television or playing games on computers and smartphone. This is the very much important topic which we are discussing from your very basic age. जब आप फर्स्ट में थे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक ही चीज आपको बार बार पेरेंट्स और टीचर्स रेपिटेशनली बोल रहे हैं कि आपको अपना जो टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज पे ही स्पेंड करना चाहिए. अगर आप टीवी देखते हो या मोबाइल देखते हो, तो वो टाइम आपको क्या करना है, कम करना चाहिए, उसको शॉर्ट कर देना चाहिए. वी आर नॉट सजेस्टिंग यू कि आप फोन देखिए, अभी भी ऑल्टरनेट्स हैं. आप फोन को अपने से बहुत दूर रखिए. अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कीप योर फोन अवे फ्रॉम यू, ताकि उसका जो इफेक्ट है वो आपके ऊपर कम आए. गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस वर ऑल द चेंजेस विच यू कैन मेड इन योर लाइफ टू प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिजीजेस. हम अपने अंदर से अपनी जो डिजीज है उनको कैसे खत्म कर सकते हैं, जो भी लाइफस्टाइल की वजह से आते हैं, जो अंदर से ही होते हैं, और अच्छा खाना खाने से हम उनको चेंज भी कर सकते हैं. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, डेफिशिएंसी डिजीजेस. बेटा अभी हम बात करेंगे कि अभी मैंने आपको जो बताया वो क्या था कि हम कुछ खाते हैं, गलत खाते हैं, उसकी वजह से हमें डिजीज होते हैं, गलत लाइफस्टाइल की वजह से डिजीज होते हैं. अब कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो बॉडी के अंदर जब कोई कमी हो जाती है तो उसकी वजह से जो डिजीज होते हैं उनको हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी बच्चा मिल्क नहीं लेता, अगर हम मिल्क नहीं लेते तो मिल्क ना लेने से हमारे अंदर कैल्शियम की प्रॉब्लम होती है.
कैल्शियम की प्रॉब्लम होती है, कैल्शियम के साथ हमारे टीथ को सबसे पहले प्रॉब्लम होती है, फिर हमारी बोन्स को प्रॉब्लम होती है, फिर हमारी स्किन को भी प्रॉब्लम होने लग जाती है अगर हम मिल्क कर्ड नहीं कंज्यूम करते. ओके, सो देयर आर डेफिशिएंसी डिजीजेस which I let you know in next video. So children, in this topic we will talk about various kind of deficiencies in the bodies. Due to that various diseases are there. कौन से ऐसे डिजीज है जो बॉडी के अंदर, जब डेफिशिएंसी क्या होता है, किसी चीज की कमी हो जाना. अगर बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी कमी हो जाती है जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस लग जाते हैं. Before going to start, I would like to tell you that बेटा बेसिकली ये जो डिजीजेस हैं, ये जो बच्चे स्लम एरियाज में रहते हैं उनको ज्यादा होते हैं. Why? बिकॉज उनको तीनों टाइम का प्रॉपर खाना नहीं मिलता. उनको कुछ भी मिलता है तो वो खा लेते हैं. उनको प्रॉपर, जैसे हमारे पेरेंट है, बाय गॉड ग्रेस हमारे पेरेंट हमारे लिए इतना लेबर करते हैं. दे आर प्रोवाइडिंग अस फूड. इवन वो एक्सेस फूड भी हमें देते हैं कि बेटा अभी आप ये खा लो, अभी आप ये खा लो. तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों के लिए कि हमें कभी भी जो खाना है उसको मना नहीं करना. मम्मा ने जो भी हमें दे दिया, वी हैव टू ईट इट. बिकॉज थिंक अबाउट दोज चिल्ड्रन जिनको खाना नहीं मिलता. गेटिंग माई पॉइंट? सो हमें ये सोचना होगा कि ऐसे भी बच्चे हैं दुनिया में जिनको खाना नहीं मिलता, बट हमें इतना भगवान ने दिया है और फिर भी हम मना करते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ऑलवेज डू प्रेयर बिफोर ईटिंग, जैसे आप स्कूल में करते हो, सेम वे एट होम ऑल्सो. सो नाउ बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देयर आर 5 to 6 डिजीजेस जो कि डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं. तो कौन सी डेफिशिएंसी है जिससे हम इस डिजीज को, डेफिशिएंसी को दूर करके इस डिजीज को भी दूर कर सकते हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट वेरी फर्स्ट वन, दैट इज मरासमस. सो मरासमस जो डिजीज है ये किसकी वजह से होता है? अगर बॉडी के अंदर प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स नहीं जाते प्रॉपरली तो हम बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, ये डिजीज हो जाता है. तो इस डिजीज का क्या सिम्टम है, क्या दिखता है, आप अपनी बुक में देख सकते हो अच्छे से. ये एक बच्चा है, उसके रिब्स भी नजर आ रहे हैं. आपको पिक्चर में यहाँ से नहीं क्लियर हो रहा होगा, यू कैन चेक ऑन योर बुक दैट बॉडी के अंदर जो चेस्ट के रिब्स होते हैं वो नजर आ रहे हैं. और जो स्किन है वो इतनी पतली हो जाती है कि फोल्डिंग ऑफ स्किन भी नजर आने लग जाती है. You can read here, the child becomes so thin that loose fold of skin can be seen all over the body. The ribs of the child are also visible throughout the skin. The child has sunken eyes. मतलब धंसी हुई आंखें, उसकी आंखें अंदर को धंस जाती हैं. Then prevention, कैसे इससे बचा जा सकता है? Eat a diet rich in protein, carbohydrates and fats. Include foods like cereals, potatoes, honey, ghee and milk in the diet. ये सारी चीजें डाइट के अंदर हमें लेकर आनी चाहिए ताकि इस डिजीज से बचा जा सके. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट डिजीज, दैट इज क्वेशकोर. ये कौन सा डिजीज है बेटा? क्वेशकोर डिजीज जो है, इट इज ड्यू टू कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन. अगर कोई भी प्रोटीन का इंटेक नहीं करता तो उसको ये डिजीज हो जाता है. इस डिजीज में बेटा क्या प्रॉब्लम आती है? सी, the abdomen of child gets swollen and bulges out. So here I told you that the legs become thin, child has bulging eyes. Bulging means बाहर को निकली हुई. So you can check picture in your book that swollen abdomen और eyes जो है वो बाहर को निकल जाती है. तो क्या है ये, इससे कैसे दूर हो सकते हैं? डेफिशिएंसी को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? इंक्लूड एग्स, फिश, मीट, पल्सेस एंड मिल्क इन द डाइट. ये चीजों को अगर डाइट में हम प्रॉपरली लेते हैं तो इस डिजीज से भी हम दूर रह सकते हैं. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट डिजीज, दैट इज अनीमिया. अनीमिया जो है बेटा, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. आयरन डॉक्टर अगर हम जाते हैं तो हमें सजेस्ट करते हैं, वो आयरन की टैबलेट्स भी हमें देते हैं, तो उससे भी दूर होता है. अगर हम उसको अपनी लाइफस्टाइल से ही चेंज दूर कर दें अनीमिया की प्रॉब्लम को, अगर हम अपनी डाइट को इतना अच्छा कर लें कि हमें अनीमिया की प्रॉब्लम हो ही ना, तो उससे क्या होगा, हम ठीक हो सकते हैं. तो इससे क्या सिम्टम्स होते हैं बेटा? एक्सट्रीम फिटीग होता है, वही थकावट, वीकनेस, पेल स्किन, लॉस ऑफ वेट का कम होना भी शुरू हो जाता है. देन हमें क्या लेना चाहिए? डेट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, फ्रूट लाइक एप्पल, गावा, जैगरी इन द डाइट. ये सारी चीजों को डाइट में अगर हम रेगुलर बेसिस पे लेते रहेंगे तो वी कैन ऑल्सो प्रिवेंट दिस डिजीज. कम्स टू द नेक्स्ट डिजीज, दैट इज goiter. It is due to the deficiency of iodine. Then
इससे क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट इन नेक रीजन और रिटार्डेड ग्रोथ, जो ग्रोथ है वो भी रुकनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर इस एरिया में स्वेलिंग शुरू हो जाती है। तो इससे हम कैसे दूर कर सकते हैं, ईट सी फूड एंड आयोडीन सॉल्ट जो होता है, कई बच्चे क्या होते हैं ऑल द टाइम मीठा खाते हैं, उनको वेजिटेबल खानी नहीं पसंद, तो फिर सॉल्ट उनकी बॉडी के अंदर नहीं जाता, तो उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। थायराइड ग्लैंड्स जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वहां पर स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है। कम्स टू नेक्स्ट डिजीज दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। और इसमें क्या होता है, पर्सन को अ पर्सन कैन नॉट सी इन डिम लाइट, तो उसको जो डिम लाइट होती है उसमें दिखना बंद हो जाता है। और क्या इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में हम, कैरेट, स्पिनच, मिल्क, पपाया, एग्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल इन द डाइट। ये सारी चीजें लेने से हम ये नाइट ब्लाइंडनेस से भी दूर हो सकते हैं। कम्स टू द नेक्स्ट डिजीज दैट इज बेरी डिजीज इज ड्यू टू विटामिन बी डेफिशिएंसी। और यहाँ पर क्या होता है, स्किन बिकम ड्राई, स्केल, एक्सट्रीम वीकनेस, इफेक्ट द नर्वस सिस्टम एंड मसल्स। तो इसमें क्या होता है कि स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है, सारा नर्वस सिस्टम जो है हमारा और मसल्स का वीक हो जाता है। ओके, तो हमें क्या इंक्लूड करना है अपने डाइट में, वी शुड इंक्लूड मिल्क, एग्स, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सीरियल्स इन द डाइट। तो आपने देखा होगा अभी तक हमने जो भी चीजें डाइट में फॉलो करने के लिए सब डिजीजेस की ऑलमोस्ट सेम है। कैन वी काउंट ऑन आवर फिंगर्स? यस, द वेरी फर्स्ट वन इज मिल्क, ओके, सेकेंड इज green leafy vegetable, correct. Then we can have fruits, yes. Then we can have fish, meat or eggs, these kind of things. तो ये सारी चीजें अगर हम रेगुलर लाइफ में लेते रहेंगे तो we can prevent all these diseases. We can escape, हम बच सकते हैं इन diseases से. All right. Then comes to scurvy. तो ये disease है due to deficiency of vitamin C. इसमें क्या होता है, swelling and bleeding of gums, loosening of teeth. जो गम्स है अपने वो स्वेल होने शुरू हो जाते हैं और दांतों का टूटना भी शुरू हो जाता है। विटामिन सी की बड़ी अच्छी टैबलेट्स भी आती हैं, बच्चे वो लेते हैं, उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी है वो खत्म हो जाती है। अदरवाइज नेचुरल थिंग्स में जो हमारी चीजें जो सोर होती है, थोड़ी सी खट्टी होती है, लाइक लेमन हो गया, आप ऑरेंज ले सकते हो, ये इन चीजों में विटामिन सी होता है। तो आप आंवला, टमेटोज, सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन एंड ऑरेंज इन द डाइट, ये चीजें अगर हम खाते हैं तो विटामिन सी भी अपनी बॉडी के अंदर प्रॉपर जो भी जितना रिक्वायर्ड है रहता है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी के अंदर क्या होता है, बोन एग्स, जो लेग्स होती हैं वो बेंड हो जाती हैं, एंड स्पाइन, पेन इन द बोन्स, जो बोन स्पाइनल कॉर्ड है वहां पर पेन स्टार्ट हो जाता है। और ये हम कैसे दूर कर सकते हैं, कौन सी डाइट ले सकते हैं हम, इंक्लूड मिल्क, फिश एंड एग्स इन द डाइट। सनलाइट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ विटामिन डी। आई टोल्ड यू इन आवर स्कूल ऑल्सो कि हमें समटाइम सन बाथ लेना चाहिए, स्पेशली इन द मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 10 जो टाइम होता है, हम अपनी बॉडी को डायरेक्ट एक्सपोज टू सन करके छत के ऊपर जाकर हम बैठ सकते हैं। तो हमें शॉर्ट्स ही पहनने हैं तब तक कि डायरेक्ट जो है सन अपनी लेग्स को आए। अगर हम कपड़े पहनते हैं पूरे ही लाइक लोअर और फुल स्लीव पहनेंगे तो वो सन को एक्सपोज नहीं होगा। हमें कुछ शॉर्ट्स पहनकर, बॉयज गर्ल्स जो छोटे बच्चे हैं वो आराम से पहन सकते हैं, तो उनको धूप में लेट जाना चाहिए, अपना फेस कवर कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि टैनिंग हो जाती है समटाइम धूप से, तो फेस को अपना प्रॉपर एक हैंकी रखिए और फिर बैक साइड से भी आप लेट कर सन बाथ ले सकते हो, तो उससे हमारी विटामिन डी की प्रॉब्लम भी खत्म होती है। ओके, नाउ तो ये हमारे डिजीजेस थे सारे, आपने अच्छे से पढ़ लिए। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फूड एडल्ट्रेशन। दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस टॉपिक, ये बिल्कुल नया टॉपिक है। तो फूड एडल्ट्रेशन में क्या होता है बेटा, लेट मी टेल यू। Addition of low quality, cheap, unwanted or harmful substance in the food item is called food adulteration. बेटा अगर हम देखो कोई भी हम खाना बाय करते हैं, हम अगर बात करें मिल्क लेते हैं हम, और हम राइस लेते हैं, पल्सेस लेते हैं मार्केट में से, तो उसकी जो क्वालिटी है हम प्रॉपरली देखते हैं कि ये कौन से ब्रांड का है। एक पैकेट में आते हैं ब्रांड्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो पैकेट के ऊपर वो कंपनी का नेम मेंशन होता है। अगर आप उस पैकेट की ऑपोजिट साइड देखोगे तो उन्होंने उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो भी मेंशन की होती है कि ये कितने केजी है,
और कब मैन्युफैक्चर हुआ था और कब तक हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर कोई चीज ऐसी है जिसको प्रिजर्वेटिव डालकर रोका हुआ, जैसे कि टेट्रा पैक्स में जूसेस आते हैं, पिकल्स आते हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो वो सारी चीज उनको मेंशन करनी पड़ती है। और हैव यू सीन दैट डॉट, रेड डॉट, ग्रीन डॉट? ग्रीन डॉट मीन्स इट्स वेजिटेरियन, और अगर रेड डॉट है तो नॉन वेज ये प्रोडक्ट है। तो वो सारी चीजें उनको उस पे मेंशन करनी इंपॉर्टेंट है, सो दैट अगर वहां पर कोई भी प्रॉब्लम है तो वी कैन स्यू दैट, मतलब हम उस कंपनी से कोर्ट के थ्रू बात भी कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है वो। तो इसी तरह फूड एडल्ट्रेशन इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली। The harmful substances that are added to food items are called adulteration. Such food are called adulterated foods. The food sellers and adulterants in the food to increase the quantity of food and make them look fresh and attractive. तो अगर हम राइस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइस छोड़िए, अगर मैं बात कर रही हूँ पल्सेस लेते हैं, दालें लेते हैं कोई भी, तो दालों में क्या करते हैं, कुछ ऐसे कंकर होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, वेट लगता है कि 1 kg है, बट जब हम उसको निकालते हैं तो वो 1 kg से कुछ कम होता है। तो ये एडल्ट्रेशन होती है, ये गलत काम होता है। तो उससे क्या होता है, जो शॉपकीपर है उनको पैसे बचते हैं। तो इस वजह से अगर कोई ऐसा काम करता है तो उनको क्या होता है कि वो मोर प्रॉफिट अर्न करें। ओके, तो और वो कुछ ऐसी चीजें भी डालते हैं, जैसे कि फ्रूट, समटाइम हमने सुना था कि जो फ्रूट है ये इतना मीठा है क्योंकि इसमें वैक्सीन लगता है, सुना है आपने कि इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि वो फ्रेश दिखे, मीठा लगे खाने में। तो उसमें कुछ ऐसी ऐसी चीजें डाल देते हैं ताकि वो ठीक लगे खाने में, और सेल ज्यादा हो, सेल होगी तो उनके पास पैसा आएगा, बट वो लोगों की हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, विच इज क्वाइट रॉन्ग। तो इसको फूड एडल्ट्रेशन कहते हैं। ओके, नाउ सम कॉमन एग्जांपल ऑफ एडल्ट्रेशन था, मिल्क में वो क्या डाल सकते हैं, जैसे मिल्क, अब व्हाइट कलर का मिल्क है, उसमें हम कोई भी कलर चीज डालेंगे तो नेचुरल उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो मिल्क को अगर वो पानी ऐड कर देंगे तो मिल्क जैसा ही दिखता है पानी ऐड कर भी, तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। कहीं 1 kg अगर मिल्क उन्होंने एक घर में 2 घरों में देना है, ओके, तो अब वो क्या करेंगे, उन्होंने 1 kg देना और है उनके पास 1 kg, तो 1 kg वाटर ऐड कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा 2 kg, अब 1 kg इसको दे दिया, 1 kg इसको दे दिया, बट उसकी क्वालिटी रिड्यूस होगी मिल्क की। ओके, डिटर्जेंट्स भी डालते हैं, मिल्क के अंदर डिटर्जेंट्स भी डाले जाते हैं, देन फैट एंड यूरिया, ये सारी चीजें उसके अंदर डाली जाती हैं। हनी के अंदर पानी और शुगर डाली जाती है, क्योंकि हनी मीठा होता है, और फिर वो पानी डाल देते हैं। हैव यू सीन दैट, कई बार हम हनी बाई करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो जब उसको खोलते हैं, या विंटर्स की बात करें तो वो प्रॉपर अंदर से जमा हुआ होता है। हनी जो प्योर होता है वो कभी भी जमता नहीं है, चाहे उसको आप फ्रिज में रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज खोया, उसमें स्टार्च डालते हैं। देन चिली पाउडर में ब्रिक पाउडर डाला जाता है, ब्रिक मीन्स जो ईंट होती है रेड कलर की, चिली रेड कलर की होती है, तो उसमें वो डाला जाता है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए। द फूड एडल्ट्रेंट्स में कॉज डिजीज लाइक कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, स्टमक डिसऑर्डर। अगर हम ये गलत वाला खाना खा लेते हैं तो इससे ये वाले डिजीजेस भी हो सकते हैं। तो हमें हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही खाना लेना चाहिए और अच्छा ही खाना खाना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फूड एंड हेल्थ चैप्टर। आई होप आई एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल और आप सबको अच्छे से समझ में आया। टिल द टाइम, बाय बाय, सी यू एंड गिव अ क्विक रीडिंग टू योर चैप्टर। बाय बाय।